Okay, so we are starting with the worksheet. So first question, ठीक है? Before I start with the first question, उसी से related एक question मैं पूछना चाहूंगी. Who discovered cell? Who is going to tell me who discovered cell? Cell किसने discover किया था? Epicurus से. Yes. So Epicurus से corner row first bench girl. आ जाओ fast. मैम रॉबर्ट हुक. Robert Hooke. That's nice. Well done. So Robert Hooke discovered cell. ठीक है? And he used a microscope. उसने जो microscope use किया था उसमें एक lens use किया था. So first question is based on that. So discovery of which physics instrument made revolutionary progress in the field of microbiology? So who is going to answer me the question of this? Yes, who is going to answer the question number 1? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन देगा? यस, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर वर्कशीट. यस, सॉक्रेट्स, मिडल रो, सेकंड लास्ट बेंच गर्ल. आ जाओ बेटा. आवाज नहीं आ रही, माइक फिक्स करो. नो, योर वॉइस इज नॉट कमिंग. चेक योर माइक. थोड़ा सा उसे प्लग रिप्लग रिमूव करके फिर से प्लग लगाओ. नो, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, सॉक्रेट्स. ओके, यस, नाउ इट्स कमिंग. यस बेटा. मैम यस, कन्वेक्स लेंस. convex lens. That's nice. So answer, everyone mark in your worksheet. सभी अपनी वर्कशीट में मार्क करो आंसर. Everyone. Everyone mark this. So answer of first is B, that is convex lens. Convex lens जो है इमेज को मैग्नीफाई यानी उसको बढ़ा देता है, उसका साइज बढ़ा देता है. ठीक है? Coming to the second question, ध्यान से सुनो. What assertion is saying? Assertion is saying microorganisms become visible only after microscope invention because they were created later. क्या ऐसा हुआ था? जब माइक्रोस्कोप बना था उसके बाद जो है माइक्रोब्स जो है वो पैदा हुए. कैसा हुआ था? यस, इज इट ट्रू? अगर ये ट्रू है तो थम्स अप दिखाओ. इफ इट्स फॉल्स शो मी द थम्स डाउन. यस, बताओ assertion is true or false? So many of you are saying it's true और कुछ कह रहे हैं गलत. So I will tell you, माइक्रोस्कोप बाद में बना था, डिवाइस बाद में बनी थी. माइक्रोब्स तो ऑलरेडी थे, क्योंकि हमारे पास डिवाइस नहीं थी इसलिए हमें वो दिखते नहीं थे. ठीक है? लाइक अगर हमारे पास स्पेसशिप नहीं था तो हम स्पेस में नहीं गए. इसका मतलब ये नहीं कि पहले स्पेस था ही नहीं और कोई प्लैनेट्स नहीं थे. दे वर देयर ओनली. स्पेसशिप आई तब हम जाके वहां पर देख के आए. ठीक है? सिमिलरली माइक्रोब्स तो ऑलरेडी थे, लेकिन क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं था सो इट वॉज नॉट विजिबल टू अस. ठीक है? So the statement assertion is false. Coming to reason, microscopes magnify the image of already existing organism by using convex lens. Is it true or false? Reason is true or false? Okay, yes, Socrates. What about Karl Marx? Yes, is it true? Reason is true? मुझे देख के कुछ नहीं होगा, वर्कशीट पे देखो, फोकस ऑन वर्कशीट. Yes, Miletus, is it true or false? Reason is true or false? Okay, few students. But what about others? You don't know the answer? ध्यान से पढ़ो बेटा. Tolstoy. What's your answer? True or false? Okay. Walter. Yes, Walter. Is it true or false? Okay. Epicurus. सिर्फ मुझे हाँ ना बताना अभी. Yes or no? Is it true? True के लिए thumbs up.
फॉल्स के लिए thumbs down, yeah, okay. Russell, okay. So yes, so many of you are correct. So अब क्या हुआ, स्टेटमेंट पहले क्या कहा था कि माइक्रोस्कोप नहीं था इस वजह से माइक्रोब थे ही नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं था। अब रीजन ये कह रहा है कि माइक्रोस्कोप आने के बाद हमने माइक्रोब को देख लिया, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप से उनका साइज बड़ा करके उनको देख सकते हैं। सो इट इज करेक्ट। सो एवरीवन राइट डाउन, assertion is false बट रीजन इज ट्रू। वो सही कह रहा है, ठीक है, उसने सही कहा है। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Who is going to answer this question? Third question. Yes, who is going to tell me? Okay, रसल से आ जाओ, गर्ल कॉर्नर थर्ड लास्ट बेंच, आ जाओ बेटा। C option. Yes, C option. Okay, Russell and Plato, turn on your camera बेटा। So you are saying C. C, ठीक है? मैम Yes. मैम give the access for the camera 8th Plato class. Access is already given. चल नहीं रहा मैम, that is failed. Yes, yes, I am again sending the request to start camera. Ma'am, it is not only. It's not starting. No. Okay, do one thing, quickly rejoin the session then. Do one thing, quickly. ठीक है? तो यस, तो थर्ड का बच्चे ने मुझे आंसर बोला है सी। सो लेट्स सी इट। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेल तो लार्जेस्ट पार्ट नहीं है ना? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर रिप्रोडक्शन। नो, इट इज नॉट द क्राइटेरिया, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हमने पढ़ा था सेल से ही हम सब बने हैं। जैसे दीवार किसकी बनी है? इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक। तो एक ब्रिक क्या कहलाई जाएगी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, वी कैन से सॉरी, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ वॉल। सिमिलरली सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल क्यों? अभी हम ऐसे कर पा रहे हैं, आप लोग ऐसे कर पा रहे हो, या फिर आप ऐसे बैठे हो। हाउ यू कैन डू इट? इट्स बिकॉज ऑफ योर सेल्स। आप सोच रहे हो आप कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये आपके सेल्स कर रहे हैं। It's your cells that are making you to do this thing. ठीक है? So it's your cells only. So answer is third का C. That is correct. Coming to the fourth, which of the following is an unicellular organism? पहले मुझे कोई बताएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? Who is going to tell me what is unicellular organism? Okay, कार्ल मार्क्स से कॉर्नर रो 1 2 3 फोर्थ बॉय आ जाओ, जहां पर मैम बैठे हैं उस वाली रो से। यस, लास्ट बेंच बॉय जो है। Ma'am, both A and B. नो, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इफ वी आर सेइंग यूनिसेलुलर, व्हाट डज इट मीन? यूनिसेलुलर होता कौन है? किसको कहते हैं बेटा? और अगर आपने आंसर बोला है डी, मतलब बोथ बी एंड सी। Ma'am, the organism which only contain one cell. यस, कंटेन नहीं बोलेंगे, जो एक सेल का बना हो, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है, जो एक सेल का ही बना होता है उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। सो यस, यू आर राइट। सो आंसर ऑफ दिस फोर्थ का एवरीवन मार्क, इट्स डी, ईस्ट एंड पैरामीशियम। अभी हमने जो है कुछ सेक्शंस की मैंने अभी क्लास ली थी, कार्ल मार्क्स, सॉक्रेट्स, एपिक्यूरस, रसल। सो यू नो दैट अभी हमने ईस्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया था। सो ईस्ट इज सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम, yesterday I told you, इट इज स्लीपर शेप, चप्पल की तरह उसकी शेप होती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं।
Which of the following is the main advantage of multicellularity, due to which multicellular organism are more efficient than unicellular organism? Who is going to tell me the answer of this? Yes, who is going to tell me the answer of this? Okay, Socrates से middle row, second last bench girl, आ जाओ बेटा. कम बेटा. मैम डिवीजन ऑफ लेबर. यस, डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, अब आप ही क्लास में एक ही बच्चा होता. ठीक है, यस टॉलस्टॉय बेटा, सीधा होके बैठ जाओ. टॉलस्टॉय बॉय, सीधे होके बैठो बेटा. यस, सो डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो गया? अगर सपोज कर लो कि एक क्लास है, ठीक है, सपोज कर लो आपकी जो क्लास है, एक ही टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, एक ही टीचर साइंस, एक ही टीचर पंजाबी, एक ही टीचर आर्ट्स, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है. कैसा होता? टीचर भी थक जाता, आप भी थक जाते. यू ऑल्सो गेट टायर्ड एंड टीचर ऑल्सो, क्योंकि इतना सारा काम आ जाता है ना. तो अब उस चीज को हमने क्या किया? लेबर मतलब उनका काम डिवाइड कर दिया. इंग्लिश के टीचर कोई और, मैथ्स के कोई और, साइंस के कोई और, एसएसटी के कोई और, फिजिकल एजुकेशन के कोई और, पंजाबी के कोई और. सो इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं कि हमने काम बांट दिया, हमने डिवाइड कर दिया. अब हमारी बॉडी में जो है अलग अलग तरह के सेल्स है. अभी हमने 4 सेल्स पढ़े थे, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, है ना, चीक सेल्स, और मसल सेल्स में 3 फर्दर हमने पढ़े. ठीक है, अब ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर ही हैं, बट दे आर डूइंग डिफरेंट वर्क. अभी हम सबके न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स वर्क कर रहे हैं, जो भाग रहे हैं, जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आपके दिमाग में जा रहा है, या फिर आप जो बोल रहे हो वो मेरे दिमाग में जा रहा है. हाउ इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ नर्व सेल्स, जो कि कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, वेरी लॉन्ग इस शेप में होता है. ठीक है, ब्रांच शेप में होता है, इट इज लाइक दिस. ठीक है, ऐसे ही जो हमारे मसल्स हैं, हम जो मूव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मसल सेल्स. ठीक है, everything that is happening inside our body is because of the cells, and we have different types of cells to perform specific task. सारे सेल सारा काम नहीं करते. आपकी बॉडी में सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? कहोगे लंग्स में जा रही है. लंग्स से कहाँ जा रही है? ब्लड में जा रही है. ब्लड से कहाँ जा रही है? आपकी बॉडी के हर एक सेल तक जा रही है, दिमाग से लेके जो पैरों में टोज हैं वहां तक जा रही है. ठीक है, कौन लेके जा रहा है? ब्लड में कौन प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल्स. जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को इधर से उधर मूव करा रहे हैं और उसको सेल्स तक दे रहे हैं. तो हर एक जो हमारा सेल है वो स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, उसने अपना काम बांट लिया है. आरबीसी ने कहा है मेरा ये काम है, आई विल डू दिस टास्क ओनली. ठीक है, नर्व सेल ने कहा है मेरा काम है, मुझे इंफॉर्मेशन देनी है, आई विल डू दिस ओनली. ठीक है, सो दे हैव डिवाइडेड देयर टास्क. ठीक है, सो आंसर ऑफ फिफ्थ इज, फोर्थ का तो मैंने लिखा नहीं, ओके, फोर्थ का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमने अभी कर लिया था. फिफ्थ का इज ए, डिवीजन ऑफ लेबर. एवरीवन मार्क इट, डिवीजन ऑफ लेबर. Now moving to the sixth, assertion reason. Assertion is saying multicellular organisms show division of labor. Is it true or false? इस मुझे रिवीजन, assertion और reason में सभी का आंसर चाहिए, उसमें मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी. Just I need, is it true or false? I need only this. So yes, every section में मैं सभी सेक्शन को ध्यान से देख रही हूँ. Okay, Russell, especially the middle row, first 3 bench students. Yes. So now I can see the answer now. हाँ, मुझे बुलाना पड़ रहा है. 6 का yes, assertion is right. Reason is right. Different cells perform different function. क्या reason भी सही है? Yes, it is also correct. So 6 का write down, assertion and reason both are true. Both are true. Coming to the 7th, which sequence shows increasing biological organization? Yes, who will tell me this? Okay, Karl Marx से आ जाओ, first bench girl, middle row. Yes. मैम बी ऑप्शन. B option, yes. So answer is B. ये हमारे पास एक सेल है. ठीक है, अब इसके जैसे और भी हमारे पास सेल हैं. ठीक है,
अभी आपस में ज्वाइन हो गए, एक ग्रुप बना लिया। अब ये जब एक ग्रुप बना लिया, इस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। अब बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज आपस में ज्वाइन कर गए, ठीक है, दे हैव ज्वाइन एंड दे फॉर्म समथिंग। अब उन्होंने कुछ बना लिया। लेट्स से यहाँ पर मैं आपको एक बना हुआ दिखाती हूँ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। दे हैव मेड अ स्ट्रक्चर। आई थिंक यू कैन रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रक्चर। ये देखो, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ऑर्गन बना दिया। अब ये ऑर्गन कौन सा है? अगर आप इसको देखोगे, इट इज स्टमक। तो ये हो गया हमारा ऑर्गन। अब ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है, स्टमक, लंग्स, है ना, ऐसे सब। जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में ज्वाइन होते हैं, सो एक बनता है ऑर्गेनिज्म। सो दैट इज व्हाट मेंशन हियर, ठीक है। सो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सो आंसर इज सेवंथ का इट्स बी। कमिंग टू द एट्थ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है? ओके, एपिक्यूरस से आ जाओ गर्ल। यस, सो ए इज व्हाट? मैम मसल सेल। यस बेटा। मैम मसल सेल। इज इट मसल सेल? ध्यान से देखो, इसकी कोई शेप ही नहीं है। जिसकी कोई शेप नहीं होती वो क्या होता है? सबसे कल मैंने एक बनाया, भी कल या परसों मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था किसी का। ओके, आई विल गिव यू हिंट वन मोर, वो बाइंडरी फिजन से डिवाइड करता है। मैम एमोबिया। अमीबा, यस, आंसर इज इट्स अमीबा। सेकंड क्या है बेटा? बी इज व्हाट? कौन से सेल है ये? बी कौन सा सेल है? इसमें देखो वैक्यूल प्रेजेंट है। वैक्यूल किस में होता है? मैम सेल वॉल। प्लांट सेल। प्लांट्स में। प्लांट सेल। नाउ लास्ट, फ्लैट से सेल हैं, फ्लैट थिन सेल किस में होते हैं? एनिमल सेल। एनिमल में कहा? हमने ये स्लाइड्स करके देखी थी, चीक सेल्स, ठीक है। सो आंसर इज दिस। एवरीवन नोट डाउन, दैट्स गुड बेटा, सिट डाउन। नाउ कमिंग टू मैच द फॉलोइंग। ओके, वी आर मूविंग अहेड विद द मैच द फॉलोइंग। नाउ हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू सॉल्व दिस मैच द फॉलोइंग टेबल? कौन आएगा मैच द फॉलोइंग टेबल सॉल्व करने के लिए? Anyone from any section can come. We will discuss it only. Don't worry. कोई भी आ सकता है। Yes, okay, I can see Epicurus से middle row third bench girl. Yes बेटा, आप आ जाओ, आ जाओ। So first is nerve cell. Yes, nerve cell का बेटा क्या आएगा कॉलम 2 से? वेरी लॉन्ग एंड ब्रांचेड। Yes, very long मतलब सेकंड नंबर, very long and branched। और थर्ड कॉलम से? also communication between distant part of Yes. body. Yes, allow communications between distant part of the body, है ना? That's nice. Coming to B. Now, B में muscles में क्या आएगा? Muscle cell? Simple, shaped and flexible. Spindle shape and flexible. That's nice. Now, third column से? Provide enables contraction and movement. That's nice. Coming to cheek cell? Thin and flat. Thin and flat. First आ गया। और थर्ड वाले से? Provide structural support. Provide protective covering, covering करता है, ठीक है। Last, now we are left with the last, that is plant cell. So plant cell का क्या आएगा बेटा? Rectangular with the rigged cell wall. Rectangular with a rigid cell wall. That's nice. And the last is provide. Provide structural support. That's nice. Well done बेटा, well done. Everyone mark this. ठीक है, इसको mark कर लो।
Okay, so moving ahead with the 10th question. A muscle is found to have no stripes and works without conscious control. Identify it. मतलब नॉन स्ट्राइप मतलब हो गया नॉन स्ट्राइटेड मसल है लेकिन इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में नहीं है. सो यस, सॉक्रेट से आ जाओ. यस गर्ल, फर्स्ट बेंच. Smooth muscle. यस बेटा. Smooth muscle. Smooth muscles. Yes, that side. Because smooth muscles are non-striated. So yes, answer is it's C, smooth muscles. Coming to 11th. Which muscle type is most suitable for pumping blood continuously throughout life? Who is going to answer this? कोई मिलिटस से, वॉल्टर से, anyone from these two sections? कौन सा है, कौन सी मसल होगी, सोचो जरा. कौन सी मसल होगी जो हार्ट से रिलेटेड है? उसका देखो नाम भी है इसमें. इट्स वेरी इजी टू गेस इट. सोचो 11th क्वेश्चन में कौन सी मसल होगी? स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिक, वॉलंटरी, कौन सी मसल होगी? थिंक अबाउट दिस. इट्स वेरी इजी. हार्ट को, हार्ट से रिलेटेड चीजों को क्या कहते हैं? यस, वॉल्टर से आ जाओ. मिडिल रो गर्ल, आ जाओ बेटा. कोई भी आ जाओ, एक दूसरे को कोनी मत मारो, आ जाओ. एनीवन कैन कम. यस. कौन सी मसल? विच मसल बेटा? Skeletal. Skeletal, heart. Skeletal. Okay, sit down. Good attempt beta. So now let me call from Russell. चलो Russell से आ जाओ. Russell से I will call last bench girl. आ जाओ. Corner row, last bench girl. आ जाओ फटाफट. I know boys are bit disheartened. उनको नहीं बुलाया. Next time I will call you. Don't worry. Okay. Yes. Cardiac muscle. Yes, answer is cardiac muscle. So बेटा कार्डिक मसल देखो, हार्ट से रिलेटेड जो आपके साइंस में आप पढ़ोगे, सो जो टर्म यूज होती है वो कार्डिक होता है. कार्डिक टेस्ट, ईसीजी आपने सुना होगा, उसमें भी इलेक्ट्रोकार्डियो यूज होता है. कार्डिक मसल्स, कार्डिक एक्सरसाइज. सो कार्डिक मींस क्या होता है? हार्ट. तो जो हार्ट की मसल होंगी वो कौन सी होंगी? कार्डिक मसल्स होंगी. ठीक है. और वो भी स्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं है. आप अपने हार्ट को नहीं कह सकते जस्ट टेक अ 5 मिनट ब्रेक, आई विल बी बैक. ऐसा नहीं कह सकते हार्ट को, है ना. सो दिस इज सी. नाउ कमिंग टू 12th. व्हाई कैन यू स्टॉप राइटिंग व्हेन यू वांट बट कैन नॉट स्टॉप डाइजेशन? अब ऐसा क्यों है? अगर हमने खाना खाया है, ठीक है, और हम अपने स्टमक को कह दे कि डोंट स्टार्ट डाइजेशन नाउ, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने स्टमक को कि अभी मैंने खाना तो खा लिया है लेकिन तुम ना आधा एक घंटे बाद या शाम को डाइजेशन करना? कैन वी डू दिस? नो. लेकिन अभी आप लिख रहे हो और आपका मन नहीं है तो आप क्या कहते हो? अभी नहीं, मैं तो शाम को करूंगा या करूंगी. सो यू नाउ यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर विल, वो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, लेकिन आपका पेट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता. तो ऐसा क्यों? So Miletus say yes, middle row, second last bench girl. Ma'am, writing uses skeletal muscles, digestion using smooth muscles. Yes, that's a correct answer. 12th का है C, क्योंकि हम जब लिख रहे हैं तो हमारी स्केलेटल मसल जो हमारे कंट्रोल में है वो यूज हो रही है. बट जब हम खाना खा रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है? स्टमक में. स्टमक में कौन सी मसल्स हैं? स्मूथ. और हमने अभी पढ़ा है दोज आर इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग सो. Coming to 13th, why can muscles only pull, not push? मतलब एक धक्का क्यों नहीं देती, हमेशा खींचती क्यों है? Why so? Yes, Epicurus say, I can see one hand. Yes, first bench girl. Corner row.
They can only contract. यस, बिकॉज मसल कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसलिए वो पुल करती है। सो आंसर इज इट्स बी। दैट्स नाइस। नाउ कमिंग टू 14th assertion reason again, सभी सेक्शंस ने पार्टिसिपेट करना है। assertion is saying movement is possible due to contraction and relaxation of muscles. Is it true or false? That's really nice. So yes, it's true. So assertion is true. Coming to reason, चलो reason देखते हैं। It contains nucleus, sorry, muscles are attached to bones. Yes, बच्चों को पता है टेंडन्स होते हैं ना, मसल तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करती है। आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है बॉडी मूवमेंट, ठीक है, तो वहां पर टेंडन्स पढ़े थे ना। So it is not my muscle that directly connects with the bones. So this is false. Now coming to 15th question. अब इसमें 15th क्वेश्चन में बेटा एक ठीक कर लो, जो बी लिखा हो ना ए बी सी डी, तो बी नहीं है वो। बी को काट के सी को बी कर लो और डी को सी कर लो। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना 15th में ए बी सी डी, बी को कट कर लो, वो पॉइंट नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूशन में एक लाइन है। और जो सी है इसको काट के बी कर लो और डी को कर लो सी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव एंड सेंड मैसेजेस टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये नर्व सेल न्यूरॉन्स बना रखे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द डायग्राम एंड दिस इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है जरा पूछ देखते हैं। A neuron is damaged such that it can still receive signals but cannot pass them forward. Which part is mostly affected? Who can tell me? सोचो जरा, क्वेश्चन क्या है समझे पहले। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ये हमारा नर्व सेल है, ठीक है, ये हमारा नर्व सेल है। नर्व सेल को हम 2 पार्ट्स में मोस्टली डिवाइड करते हैं। ये जो वाला होता है जिसमें थोड़ा स्टार जैसा पैटर्न है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और जो ये वाला है इसको हम कहते हैं एक्सोन। अब जब आपके ब्रेन से या कहीं से भी ये इंफॉर्मेशन जब लेता है, सो व्हाट हैपेंस, इट कम्स फ्रॉम हियर। इंफॉर्मेशन यहां से आते हुए एक्सोन से होते हुए बाहर जाती है। अब ये या तो दूसरे सेल के पास जाएगी या फिर देयर मस्ट बी अनदर न्यूरॉन जिसके पास ये इंफॉर्मेशन आगे जाएगी। सो दिस इज हाउ इट ट्रेवल्स। इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है, न्यूरॉन डैमेज हो चुका है कि ये रिसीव कर रहा है, इट इज रिसीविंग द सिग्नल बट इट इज नॉट फॉरवर्डिंग इट, इसको आगे नहीं दे रहा। तो कौन सा पार्ट डैमेज हुआ होगा, कौन सा पार्ट डैमेज हुआ होगा नर्व का? यस, एपिक्यूरस से। यस गर्ल, आ जाओ। यस बेटा, I'm dead. dendrite is receiving the signal. Now which part must be affected कि वो आगे जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा? यस बेटा, The myclone. यस बेटा, एक्सोन्स। यस, क्योंकि देखो रिसीव तो वो कर ही रहा है, मतलब डेंड्राइट इज वर्किंग फाइन, मतलब ये आगे वाला जिसने आगे देना है वो खराब हुआ है। सो आंसर ऑफ दिस इज एक्सोन। सो एवरीवन, ए का आंसर है एक्सोन। ठीक है, एक्सोन इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द बी क्वेश्चन, व्हाई आर न्यूरॉन्स लॉन्ग एंड ब्रांच कंपेयर टू अदर सेल्स? क्यों वो इतने बड़े और ब्रांच्ड होते हैं, क्यों बाकी सेल्स की तरह छोटे नहीं होते? व्हाई? तो आंसर क्या है? यस, कार्ल मार्क्स से लास्ट बेंच बॉय आ जाओ कॉर्नर।
Ma'am, because when the cells are long, it is easy to transfer messages. That's nice. So because it has to transmit message, ठीक है, उसको मैसेज भेजना है, इसलिए उसे बड़ा होना जरूरी है, ठीक है। Coming to C, assertion is saying cell body is essential for neurons. सेल बॉडी एसेंशियल है, जो भी हमने न्यूरॉन किया, क्या उसकी बॉडी एसेंशियल है उसके लिए? यस और नो, यस और नो। ओके, आई कैन सी यस, सो आंसर इज इट्स यस। सो assertion is true. Coming to reason, reason is saying it contains nucleus and control activities. Is it true? Yes, it's true. ठीक है, it's also true. Now moving ahead with the question number 16. What is the main function of the plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। क्या काम है इसका? ये सॉक्रेट से आ जाओ, सॉक्रेट से। Yes, see, to separate cell contents from the external environment and regulate movement of materials. ठीक है, it's a guard basically, है ना। कुछ को आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा, जैसे आपके स्कूल में गार्ड होते हैं, ठीक है। Coming to 17th question, a leaf cell is boiled in water and then boiled in alcohol. ये आपके क्लास 7th में आपने पढ़ा हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, ठीक है, कि क्लोरोफिल देखने के लिए कि उसने फोटोसिंथेसिस करी है या नहीं की है। सो यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस। A leaf cell is boiled in water, then boiled in alcohol. Whole of chlorophyll comes out. Leaf 2 is placed in alcohol but no loss of chlorophyll. This is because किस वजह से होगा कि उसका क्लोरोफिल नहीं आया बाहर? देखो जरा इसके ऑप्शंस। So regulation of movement of substances in leaf 1 is stopped as boiling in water kills the cells and also plasma membrane. तो हमने बॉइलिंग किया है पहले में, एक में बॉइलिंग नहीं किया। बॉइलिंग करने से क्या होता है? सेल्स मर जाते हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट केस में हुआ, सेकंड में नहीं हुआ। Then plasma membrane is intact in leaf 1 but gets damaged in leaf 2. So आंसर क्या होगा 17th का? It's D, both. Now coming to 18. जल्दी से बताओ, a cheek cell and onion peel cell both show cytoplasm and nucleus, yet only one appears rigid. The best explanation is, ये हमने करा था स्टेनिंग। यस, चीक सेल भी देखे हमने, अनियन सेल भी, अनियन भी देखा है। तो एक जो है उसमें दे आर सेइंग दैट इट इज, हमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों में दिखा, लेकिन एक रिजिड था, मतलब थोड़ा सा, अगर हमने देखा क्लियरली हमें उसका स्ट्रक्चर दिखा है। सो यस, हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस? ओके, यस फ्रॉम द रसल। यस, आ जाओ आ जाओ, सेकंड बेंच बॉय आ जाओ फटाफट, मिडल रो सेकंड बेंच। Yes, answer is A. So rigid presence of rigid cell wall. Yes, क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल में है, सॉरी प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं है, ठीक है। Coming to 19th question, a cell loses its nucleus but all other parts remain intact. What will be the long term effect? क्या होगा? ये सॉक्रेट से आ जाओ, गर्ल आ जाओ। न्यूक्लियस है लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं है। यस, यस बी, सेल कैन नॉट कंट्रोल एक्टिविटीज एंड विल इवेंचुअली डाई, क्योंकि हमने साइटोप्लाज्म में किया था रिएक्शन सेंटर, यहाँ रिएक्शंस होते हैं। सो आंसर इज इट्स बी। कमिंग टू 20th, व्हाई कैन अ सेल नॉट सर्वाइव विदाउट साइटोप्लाज्म इवन इफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट? यस, क्या होगा 20th का आंसर? पहले में हमने क्या किया? न्यूक्लियस नहीं है, अब हम कह रहे हैं न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म नहीं है। तो क्या होगा अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा? यस, रसल से आ जाओ, थर्ड बेंच बॉय आ जाओ।
रसल थर्ड बेंच बॉय, आ जाओ बेटा। कौन सी? Yes, beta. Yes, B. Answer is it's B. That's nice. Cytoplasm carries out essential chemical reactions. That's nice. Now coming to 21st question. All have to participate. Assertion is saying plant cell can prepare their own food. Yes, so they prepare their own food. ये देखो बहुत easy वाले हैं, जल्दी जल्दी participate करो. Reason, they contain chloroplast. क्या plant cell में chloroplast होता है? Do they have chloroplast? Yes, they have. Now 22nd assertion, animal cells are more flexible than plant cell. क्या ऐसा है? Animal cell ज्यादा flexible है as compared to plant cell? Yes or no? Socrates, what's your answer? Okay, Tolstoy, thumbs up or thumbs down? Okay, Walter, thumbs up, thumbs down. Walter. Okay, Russell. Okay, Meletus. Okay, Epicurus. Karl Marx. Okay, so yes, they are more flexible क्योंकि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल रिजिडिटी देती है, ठीक है? So it's true. Coming to reason, they lack a rigid cell wall. So that's the answer that I told you, है ना? So everyone mark these answers carefully, ठीक है? So now your science class is over and your English class is going to start soon. Take a 2-minute break. Okay, so we will be back. Bye, bache. Bye, everyone.